وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے مہاراشٹر کے جلگاؤں میں گاندھی تیرتھ میوزیم کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے گاندھی جی کے عدم تشدد کے راستے پر چلتے ہوئے تلنگانہ ریاست حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ گاندھی جی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام طبقات اور ذاتوں کی ترقی و بہبود کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس عظیم شخصیت کی زندگی پر میوزیم کے قیام کو ایک بہتر قدم قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کے نتیجے میں TRS اور BJP کے کارکنوں کے درمیان تصادم راجنا سرسیلا ضلع کے ایلاریڈی پیٹ میں پیش آیا۔ پولیس اسٹیشن کے حدود میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق BJYM منڈل کے نائب صدر رام چندر ریڈی نے TRS کے خلاف بعض ریمارکس کیے۔ انہوں نے یہ ریمارکس اپنے پوسٹ میں کیے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نامناسب ریمارکس کیے، جس پر 3 دن پہلے TRS کے کارکنوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے ہی دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں لفظی بحث جاری تھی۔ اسی دوران BJYM کے ضلعی سیکریٹری سائی کے مکان TRS کے کارکن پہنچے۔ اس واقعے کے بعد سائی کی ماں نے BJP کے کارکنوں کے ساتھ ایلاریڈی پیٹ پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت کی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی TRS کے کارکنوں کی بڑی تعداد پولیس اسٹیشن میں جمع ہو گئی اور پولیس اسٹیشن کی حدود میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں بحث و تکرار ہو گئی، جس نے تصادم کی شکل اختیار کر لی۔ اس واقعے پر ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ BJP کے کارکنوں نے TRS کے کارکنوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے BJP قائدین کی جانب سے اشتعال انگیزی کا بھی دعویٰ کیا۔ انہوں نے BJP کارکنوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وزیر IT تارک راما راؤ امریکہ روانہ وفد کی قیادت کر رہے ہیں تاکہ ریاست کے لیے عالمی کمپنیوں سے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ تلنگانہ کا یہ وفد آج صبح حیدرآباد سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ وفد جن امریکی شہروں کا دورہ کرے گا ان میں لاس اینجلس، سین ڈیگو، سان جونس، بوسٹن اور نیو یارک شامل ہیں۔ وزیر KTR نے ایک ہفتے کے اس دورے کا ایجنڈا تیار کیا ہے۔ وہ امریکہ میں سرکردہ کمپنیوں کے انتظامیہ سے ملاقات کریں گے اور ان سے تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر موصوف ریاست کی ترقی پذیر پالیسیوں کے بارے میں واقف کروائیں گے اور تلنگانہ میں صنعت دوست سرمایہ کاری کے فائدوں سے بھی واقف کروائیں گے۔ شب برات کے موقع پر کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے پولیس بندوبست کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک پیٹ، سعید آباد، ویسٹ زون اور پرانے شہر کا دورہ کیا گیا۔ صبح میں ہولی تھی، جمعے کے پیش نظر بہتر پولیس بندوبست کیا گیا تھا۔ مذہبی جوش و خروش اور روایت کے ساتھ تہوار منائے گئے۔ سکندرآباد کے ترمل گری کی حدود میں کنٹونمنٹ لال بازار کے قریب تقریباً 100 سالہ قدیم مندر کو فوجی عہدیداروں نے بند کر دیا، جس کے خلاف مقامی عوام نے احتجاج کیا۔ اس واقعے کے خلاف مقامی افراد نے احتجاجی ریلی نکالی اور فوج کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ مقامی MLA سائنا نے اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھایا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ عادل آباد کی نٹراج تھیٹر میں کشیدگی پھیل گئی کیونکہ 2 افراد نے موافق پاکستان نعرے لگائے۔ اطلاعات کے مطابق ان دونوں افراد نے تھیٹر میں 18 مارچ کو فلم دی کشمیر فائلز کو دیکھنے کے دوران موافق پاکستان نعرے لگائے، جس پر تھیٹر میں موجود بعض افراد نے ان کی پٹائی کر دی۔ اس موقع پر صورتحال کو قابو پانے کے لیے تھیٹر کے اسٹاف نے پولیس کو طلب کر لیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کا معائنہ کیا، تاہم اس سلسلے میں پولیس کو ہنوز کوئی تفصیلات نہیں ملے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ اسے کوئی شکایت نہیں کی گئی ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر کھیل میں بچوں نے ایک دوسرے پر پتھر بازی کی۔ عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج ریلوے اسٹیشن کی پٹریوں کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں پر سیکورٹی عملہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں نے ایک دوسرے پر سنگباری کی۔ واضح ہے کہ قبل ازیں اسی علاقے میں آرٹس کالج جامعہ عثمانیہ ریلوے اسٹیشن میں آنے والی ٹرینوں پر سنگباری سے بعض مسافرین کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تھی۔
शमशाबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम और राजेंद्र नगर पुलिस ने मिलकर ओडिशा से महाराष्ट्र के अमरावती गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए बैन रियासती गांजे की टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 560 किलो गांजे के साथ साथ एक कार और 3 मोबाइल फोन्स जुमला मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। एक इतला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। मुलजिमिन की शिनाख्त सलीमुल्ला, शेख रेहान, शेख वसीम के तौर पर की गई है, जबकि टोली के दीगर अरकान अमरावती का नौशाद, ओडिशा के चित्रकूट का संतोष और उस्मान नगर अमरावती का उस्मानुल्लाह उर्फ राजू मफरूर हैं। पुलिस ने बताया कि नौशाद, संतोष, सलीमुल्लाह, शेख रेहान और शेख वसीम गुज़िश्ता कुछ अरसे से ओडिशा के चित्रकूट से गांजा हासिल करते हुए इसकी स्मगलिंग मुख्तलिफ रियासतों में कर रहे थे। एक इत्तला पर पुलिस ने आज ये कार्रवाई की। नलगुंडा ज़िले के वेमुलापल्ली के करीब सागर केनाल में कार के गिरने के वाक़े में नया मोड़ सामने आया है। मिर्यालगुड़े के अवंतीपुरम देहात की विघ्नेश्वरी की ये कार है। मिर्यालगुड़े में बीटी थिएटर के करीब इसने कार को ठहराया था, ताहम कार की चोरी की इसने बादशाह पुलिस से शिकायत की थी। कबलजी 2 टाउन पुलिस में इसने अपने वालिद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया कि ख़ानदानी झगड़ा इस वाक़े की अहम वजह हो सकता है। कर्नाटक के तुमकुरू में खानगी ट्रेवल्स की बस उलट गई। हफ्ते की सुबह पेश आए इस हादसे में 8 अफराद हलाक और दीगर 25 जख्मी हो गए। ये बस वायन होसकाटे से पावागाड़ा शहर जा रही थी कि ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस उलट गई। बाज़ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम ज़ख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस NV रमना ने दुबई में गुरुद्वारे में हाज़िरी दी। इस मौके पर गुरुद्वारे के ज़िम्मेदारों ने उनको तहनीत पेश की। जस्टिस रमना ने दुबई में मुकीम तमाम हिंदुस्तानियों से ख्वाहिश की कि वो खलीजी मुल्क के हिंदुस्तानियों के लिए कानूनी इमदाद सेंटर कायम करें। दुबई में होने वाले एक सेमिनार में शिरकत के लिए NV रमना इन दिनों दुबई में हैं। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गुज़िश्ता माह भी ऐसे ही झटके महसूस किए गए थे। इन ज़लज़लों की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई है। इन झटकों से अवाम खौफज़दा होकर मकानात से बाहर निकल पड़े। इन झटकों के सबब जानी या माली नुकसान की हनूज़ कोई इत्तला नहीं मिली है। दोनों शहरों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी गर्मी की लहर से परेशान आवाम ने हफ्ते की शाम उस वक्त राहत महसूस की जब मुख्तलिफ इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश शुरू हुई। ये बारिश का सिलसिला 30 से 40 मिनट जारी रहा। शहर के जुनूबी और मशरक़ी इलाके पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, याकूतपुरा, मीर चौक, पुरानी हवेली, डबिलपुरा, चादरघाट, मलकपेट, कोठी और मोजमजार मार्केट में बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मगरबी इलाके जैसे नामपल्ली, मल्लेपल्ली, मेहदीपट्टम वगैरह में मतला अबर आलूद रहा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक उहदेदार ने बताया कि शहर के बाद इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की से तेज़ बारिश हो सकती है। रियासती वज़रा का हंगामी इजलास हफ्ते की दोपहर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस एरावली में तलब किया गया। रियासती वज़रा हरीश राव, कपुलाईश्वर, प्रशांत रेड्डी, T श्रीनिवास यादव और G कमलाकर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से फ़ोन मौसूल होने के फौरी बाद फार्म हाउस पहुँच गए। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव, जो अमेरिका के दौरे पर हैं, इजलास में शिरकत नहीं कर सके। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी महाराष्ट्र और वज़ीर ट्रांसपोर्ट B अजय कुमार खम्मम के दौरे पर होने की वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी इजलास में शरीक थे। वज़रा की चीफ मिनिस्टर से बातचीत के मुतालिक मज़ीद तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के इंतखाब गजवेल में सर्वदिया संकल्प यात्रा का एहतमाम किया। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर रियासत के किसानों को राहत पहुंचाने में नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से धान की खरीदी का मामला हनूज हल नहीं हुआ है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए गजवेल में किसानों से ज़मीन हथियाई जा रही है। हुकूमत बराए नाम फी एकड़ 10 लाख रुपए दे रही है, जबकि वहाँ अराजी की कीमत फी एकड़ 3 से 5 करोड़ रुपए है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुंडा पोच्चाम्मा सागर से रात चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस के लिए पानी पहुंचाने, नहर खुदवाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इससे चीफ मिनिस्टर और उनके अरकान खानदान
वालों के अराजियात को फायदा हो रहा है। हाशमी ग्रुप के सीईओ तजम्मुल हुसैन हाशमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की में सरमायाकारी पर शहरियत के मौक़ों से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि तर्क वतन करने वालों के लिए ये सुनहरी मौका है। $2.5 लाख की सरमायाकारी पर तुर्की में एक ख़ानदान को आसानी के साथ शहरियत मिल सकती है। इस्तांबुल टूरिज़्म एसोसिएशन के चीफ ऑफिसर मुर्तज़ा खलंदर ने कहा कि कई एतबार से तुर्की एक बेहतरीन मुल्क है। ये मुल्क मुख्तलिफ शोबों में ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है और हुकूमत सरमायाकारी करने वालों को तुर्की की शहरियत दे रही है। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने महाराष्ट्र के जलगांव में दुनिया के सबसे बड़े मैंगो प्रोसेसिंग प्लांट का मुआयना किया। उन्होंने इसी तर्ज पर तेलंगाना में भी प्लांट कायम करने की महकमे ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर ज़राअत के हमरा अरकान असम्बली बी सुमन, जी वेंकटराम रेड्डी, पी सुदर्शन रेड्डी, ए वेंकटेश्वर रेड्डी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर वेंकटराम रेड्डी, जॉइंट डायरेक्टर सरोजनी देवी और असिस्टेंट डायरेक्टर सुभाषनी भी थी। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गवर्नमेंट कॉलेज चंचलगुड़े की तामीर और अहाते में प्राइमरी व हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तज़मीनों के मामले में मुनक़िदा एक आला सतह इजलास में शिरकत की। बाज़ उन्होंने कमिश्नर कॉलेजेस नवीन मित्तल, कमिश्नर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील और महकमे तालीम के अहदेदारों के हमरा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज का मुआयना किया। रियासत से धान की खरीदी के लिए मरकज़ पर दबाव डालने टीआरएस पार्टी अपनी मुहिम में फिर से एक बार शिद्दत पैदा करने पर गौर कर रही है, जिसमें दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट और असम्बली का बड़ा एहतजाजी धरना भी शामिल है। टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी का एक इजलास इस खुसूस में 21 मार्च को 11:30 बजे दिन तेलंगाना भवन में तलब किया गया है। इजलास में रियासती वज़रा, अरकान असम्बली कौंसल, अरकान पार्लियामेंट, पार्टी के सीनियर कायदीन और रैयती बंधु समिति के ज़िला सदूर शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत पार्टी के लीडरों का एक वफद उसी दिन दिल्ली के लिए रवाना होगा। करीमनगर मजलिस के सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इंतखाबात में किए गए अपने वादों को पूरा करे। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात के दौरान हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3,000 रुपये अलाउंस देने का वादा किया था, जो कि अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। चुनाचे रियासती हुकूमत को नौजवानों के एहसास का नोट लेना चाहिए। जिले राजना सिलसिला में बीजेपी और टीआरएस के कारकुनों के दरमियान जुमे की रात झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों पार्टी के चंद कारकुन जख्मी हो गए। गोशामल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने राजना सिलसिला के एलआरडी पेट का दौरा करते हुए बीजेपी के जख्मी कारकुनों से मुलाकात करने की कोशिश की और वो इसके लिए हैदराबाद से रवाना हो गए। पुलिस ने उन्हें अलवाल के पास गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रब पैदा करते हुए बीजेपी के लीडर गोपी को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गोपी ने खुलेआम बंदूक दिखाते हुए टीआरएस के कारकुनों को डराया और धमकाया। तेलुगु की शॉर्ट फिल्मों की मशहूर अदाकारा गायत्री, जो जुमे की रात गच्चीबौली में कार हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी, दवाखाने में इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सकी। गायत्री जिस कार में सवार थी उसे उनका दोस्त रोहित चला रहा था, वो भी शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार ने पहले एक होटल की गेट के पास 38 साला महेश्वरी को टक्कर दे दी, जो कि झाड़ों में पानी डाल रही थी। महेश्वरी की बरसरे मौका मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाही का एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नाचाला पुलिस ने मलकाजगिरी की एसओटी के साथ मिलकर मगरबी बंगाल और झारखंड के रहने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 16 ग्राम हीरोइन जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस रक्षिता मूर्ति ने मीडिया को बताया कि मुलजमीन जो तामीराती मजदूर हैं, मगरबी बंगाल और झारखंड से मंशियात लाकर भारी कीमत पर फरोख्त किया करते थे। उन्होंने बताया कि इस केस में मुलविस अहम मुलजिम समेत दीगर 3 अफराद की तलाश जारी है। बंजारा हिल में वाक़ एक होटल की लिफ्ट के गड्ढे में गिर जाने के बाद इंदौर के एक 60 साला डॉक्टर की मौत हो गई। बताया जाता है कि डॉक्टर पंकज कुमार जैन अपनी बेटी अनुपमा जैन की शादी शहर के एक सिविल कंट्रैक्टर से तय करवाने के लिए हैदराबाद आए थे। शमशाबाद में अपने समधी से मुलाकात के बाद जब वो होटल की 6ठी मंजिल पर अपने कमरे में जाने के लिए लिफ्ट में सवार होने की कोशिश की, लेकिन वो लिफ्ट के गड्ढे में गिर पड़े। उनकी दुख्तर अनुपमा ने अपने वालिद की तलाश की तो उनकी लाश गड्ढे में दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। गोपालपुरम पुलिस ने सिकंदराबाद में गुटखे का कारोबार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2,47,000 रुपये मालियती गुटखा जब्त किया गया। मुलजिम के नाम 28 साला मोहम्मद अज्जू
اور محمد کاظم بتائے گئے جو الرتطیب بیدرواڑی بیگم بازار اور بالاپور کے رہنے والے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نارزون چندنا دیپتی نے بتایا کہ یہ ملزمین کرناٹک سے گٹکا لا کر اس کا بھاری ذخیرہ کیا کرتے تھے اور پھر پان شاپس کو بھی سپلائی کرتے تھے۔